Hello everyone. Let's solve this question, a very beautiful question on the area of the triangle. तो इसमें given है, this is the diagram given over here. This is a rectangle and it says the area of this region is 6, this region is 6, this region is 5. We have to find the area of this shaded region, basically the area of the triangle. So let's start with this. So here, first of all, what we can do is to get the area of the shaded region, this is a rectangle. So let's say the length of this side of the rectangle is x, and let's say the length of this side of the rectangle is y. So basically you can say that area of rectangle is x times y. Now we know the concept of the area of triangle. Area of triangle is half times base times height. So what we will do, we will find the length of the different side, like this part, and this part over here separately, and then this part separately. So let's name this thing as A, B, this is C, this is D, this point is E, and this point is F. So first thing over here is area of triangle ABC. So we can say for triangle ABC, area is half times base times height. So half times BC into height is y, that is equal to 5. So from here the BC is equal to 10 over y. So the length of BC is what? 10 over y. So this length is 10 by y. So what is this length of CD now? Since the AF and the BD is equal, दोनों ही equal है, ये ऊपर भी x है और ये नीचे भी x होगा पूरा, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि therefore CD is equal to the total is x minus 10 by y, right? That part is the CD length. यहाँ से यहाँ तक ये CD length हो जाएगी 10 by y, x minus 10 by y. Now अब हमें ये ED की लेंथ निकालनी है, तो अब इसका ट्रायंगल का एरिया भी कितना होगा? इसका ट्रायंगल का जो एरिया दे रखा है that is given as 6, right? तो half times ED into CD. So you can say half times ED into CD is 6. CD we have already calculated, x minus 10 by y. x minus 10 by y that is equal to 6. तो यहाँ से ED निकाल लेंगे, तो ED आ जाएगा 12 divided by x minus 10 by y. और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या भी इसे रहने देते हैं. ED is equal to this. अब देखो आपके ED आ चुका है. Now after we got this ED, we have to find this EF. अब ये जो पूरा का पूरा F से लेके D तक है, इसकी लेंथ कितनी है? Y की इक्वल है. पूरा का पूरा ये Y के इक्वल होगा, राइट? AB और ये जो FD है इक्वल है. तो यहाँ से अगर मुझे FE निकालना है, तो FE क्या करेंगे? सो FE कितना हो जाएगा? पूरी की पूरी Y में से इस ED को माइनस कर देंगे, और ED हमने अभी भी फाइंड करा है 12 अपॉन x minus 10 by y, right? This is the thing we are getting. अब EF आपके पास आ गया. अब आप देखो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसका पूरा एरिया कितना है? 6 है. ट्रायंगल FEA, इसका एरिया 6 है, और एक साइड x है और एक साइड आपने FE निकाल ली. तो नाउ वी कैन से ट्रायंगल FEA. अब ट्रायंगल FEA का एरिया होगा हाफ टाइम्स FE इंटू FA. FE into FA that is equal to 6. The length of FE ये हमने अभी भी फाइंड करा यहाँ पे, y minus 12 upon x minus 10 by y. y minus 12 upon x minus 10 by y. और FA तो x है, that is equal to 6. अब इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करेंगे. तो अब लेट्स सिंप्लीफाई दिस थिंग. तो ये 2 तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा. नाउ y माइनस यहाँ पे ये जो केवल x माइनस 10 अपॉन y है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 12 अपॉन एक्स वाई माइनस 10 होल डिवाइड बाय y, and this complete thing is getting multiplied by x, and this 2 will get multiplied on the right hand side. तो ये तो 12 हो गया. यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y माइनस 12y अपॉन एक्स वाई माइनस 10 टाइम्स x दैट इज इक्वल टू 12. अब इसी में इस x को आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो अंदर,
तो x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इट विल बिकम xy माइनस 12xy अपॉन xy माइनस 10 इज इक्वल टू 12। xy माइनस 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा xy टाइम्स xy माइनस 10 माइनस 12xy is equal to 12 times xy minus 10. So here it will become x square y square minus 10xy minus 12xy is equal to 12xy minus 120. So x square y square minus 10xy minus 12xy will become minus 22xy, और यहाँ से ये 12 को भी लेफ्ट में ले आओ तो minus 22 और minus 12 हो जाएगा minus 34xy, और 120 लेफ्ट में ले आओ तो प्लस 120 इक्वल टू 0। सो नाउ वी जस्ट हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो अब देखो इक्वेशन हमारे पास बन रही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 34xy एंड प्लस 120 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 34 को ऐसे स्प्लिट करो कि प्रोडक्ट करने पे 120 आ जाए, तो 30 और 4 में स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस 30 एंड माइनस 4, तो माइनस 30xy माइनस 4xy प्लस 120, टेकिंग xy कॉमन, तो xy माइनस 30 माइनस 4 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो xy माइनस 30, तो xy माइनस 4 टाइम्स xy माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आंसर आ रहा है xy इक्वल टू 4 और xy इक्वल टू 30। अब xy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। x इंटू वाई इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये जो एरिया है देखो, इसमें इसके पार्ट्स का एरिया ही 6, 6, 5 है, तो 4 तो हो नहीं सकता पूरे रेक्टेंगल का एरिया। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिजेक्ट दिस 4, तो डेफिनेटली द एरिया विल बी 30। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 30। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 30 है, सो व्हाट विल बी द शेडेड एरिया? अब पूरे 30 में से 6, 6 और 5 को माइनस कर देंगे। शेडेड एरिया का नाम कितना देखा हमने? AEC। शेडेड एरिया मीन्स एरिया ऑफ AEC। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है 30, उसमें से 6, फिर 6 और 5 इसको माइनस कर देंगे। सो 12 एंड 5 17, 30 माइनस 17 इज 13 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस शेडेड एरिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक you for watching. And if you have any other doubt related to any question, you can send your doubt on this particular mail.